A very pleasant morning to all the dear students. So, in continuation of the previous video, in the last video, I have discussed the case study based questions. I have started this session for them, and this is the next video, second video in that series. So, basically, today again, I'm going to discuss some questions, case study based question that are going to come in your exams. Okay. So let us start with the first question of today's video. First question is, Mr. R.K. Agarwal is owner of a famous amusement park in Delhi. Generally, he does not go to the park and it is managed by a team of staff. The ticket charge for the park is rupees 150 for children and rupees 400 for adults. Okay, so the ticket charges are given. That is for children, it is rupees 150 and for adults it is rupees 400. Next condition क्या है आपके पास given? One day Mr. Agarwal decided to random check the park and went there. When he checked the cash counter, he found that 480 tickets were sold. Okay, 480 tickets were sold and rupees 1,34,500 was collected. Okay, this is the complete condition that is given. Now first part based on this, let the number of children visited be X and the number of adults visited be Y. Which of the following is the correct statement of equation that model the problem? Okay, means that represent the problems, that represent these two conditions. तो कौन सी आपको 4 options में से choose करना है which is the correct equation. तो हमारे पास basically है क्या कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन x है, नंबर ऑफ एडल्ट्स y हैं और टोटल टिकट्स कितने सोल्ड हुए? 480. सो हियर वी कैन सी दैट इट विल बी x प्लस y इज इक्वल्स टू 480. ओके, दिस इज द चिल्ड्रन, दीज आर द नंबर ऑफ एडल्ट्स एंड दीज आर द टोटल टिकट्स दैट आर सोल्ड. तो पहली इक्वेशन तो यही होगी. तो यहाँ पर अगर हम एलिमिनेशन करें ऑप्शंस का तो बी ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा. ठीक है, मतलब यहाँ पर हमें जाने की जरूरत नहीं है. टू सेव आवर टाइम वी कैन when we have to, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उनको करने का एक तरीका ये भी होता है दैट यू जस्ट एलिमिनेट द ऑप्शंस दैट आर ऑड वन. मतलब जो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि होंगे तो आप उनको एलिमिनेट कर दीजिए. दैट विल मेक योर कैलकुलेशन, योर सोल्यूशन इजियर. ओके, एंड विल सेव योर टाइम इवेंचुअली. सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 480 एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 480. ये दोनों ऑप्शन में अब हमें चेक करना है. नाउ नेक्स्ट आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? दैट रुपीज we have that rupees 150 is the charges for children and rupees 400 is the charges for adults. So basically how many we have? 150 and the total amount collected is this. ठीक है, एक इक्वेशन हमने नंबर ऑफ पर्सन से फॉर्म की, दूसरा है टोटल अमाउंट कलेक्टेड. ये जो है हमारे पास, देन व्हाट वी विल हैव दैट 150 मल्टीप्लाई बाय x, ये वो अमाउंट होगा that is collected by the tickets sold to children. Okay, क्योंकि एक चिल्ड्रन के लिए 150 रुपीज है, x चिल्ड्रन के लिए कितना टोटल मनी होगा? 150x प्लस वी हैव 400 फॉर एडल्ट एंड y टोटल नंबर ऑफ एडल्ट्स आए हैं. ये टोटल अमाउंट एडल्ट्स का हुआ. तो ये टोटल अमाउंट कितना सम अप हो रहा है? 1,34,500. ओके, दिस. सो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैंसिलिंग इट आउट. You will get 3x plus 8y is equals to 2690. 5 से कैंसिल आउट करेंगे आप इसको. ठीक है, सो 0 0 0 एक कैंसिल हो जाएगी. देन 5 3 is 15, 5 8 is 40 एंड 5 से आप ये डिविजन करेंगे. ठीक, सो यू गेट 3x plus 8y 2690. तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. ओके, सो दिस इज बेसिकली लीनियर इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन. Simple question. Okay, just you have to see that what is given. So this is the solution. Then second question is, how many children attended? Now they have asked how many children attended, means how many children have gone to this amusement park. Okay, तो मुझे पता है, मेरे पास equation 1 ये है, x plus y is equals to 480 जो फर्स्ट कंडीशन से बनी है. सेकेंड इक्वेशन ये है 3x plus 8y
इज इक्वल्स टू 2690. तो x यहाँ पर मुझे अगर चिल्ड्रन अटेंडेड निकालने हैं तो इट मीन्स आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना. मुझे x की वैल्यू चाहिए. x इज बेसिकली द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विजिटेड द पार्क. तो इन दोनों इक्वेशन को मैं जब सॉल्व करूंगी, फर्स्ट इक्वेशन में 3 की मल्टीप्लाई अगर मैंने की, देन आई विल गेट 3x प्लस 3y, है ना. एंड ठीक, सो दिस इज इक्वेशन 3 अगर मेरी बन जाती है. तो ये 2 और 3 को मैं सॉल्व करके सिंपली यू नो द मेथड टू सॉल्व द 2 गिवन लीनियर इक्वेशन. देन 5y इज इक्वल्स टू 1250, y is equals to 250. Okay. So this y is equals to 250. You get this. तो y is equals to 250 is y is basically adults, है ना. एंड यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे, इसमें पुट कर देंगे अगर, तो x की वैल्यू आपको पता चल जाएगी. दैट विल बी 230. Okay, so this is your solution, means C will be the answer. So basically 2 equations थी, आपने उनको solve किया and you get the answer. Now let us move towards this is the second part of this first question. Let us move towards the third part of this first question. So third part में they have asked how many adults attended. तो हमने वो दोनों equations को solve करके पहले ही निकाल चुके हैं. y की वैल्यू क्या था, 250 आया था. ठीक है, तो 250 adults have attended. Option A is correct. Then how much amount collected if 300 children and 350 adults attended? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. 300 चिल्ड्रन अटेंड करेंगे अगर और 350 एडल्ट्स अम्यूजमेंट पार्क में होंगे, अटेंड करेंगे, टिकट्स लेंगे, देन व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट. तो 1 चिल्ड्रन का 150 अमाउंट है, तो 300 का कितना होगा, मल्टीप्लाई करके आपने अमाउंट निकाला. 400 अमाउंट 1 एडल्ट का है, 350 एडल्ट्स का कितना अमाउंट होगा, एड अप किया, यू विल गेट दिस आंसर. So as simple as that. Then fifth part is your 1 day total attended children and adults together is 750 and the total amount collected is rupees this. What are the number of children and adults attended? तो ये आपका equations बन जाएंगी. फर्स्ट पार्ट का ही आप इसको समझ लीजिए. सेकेंड फॉर्म है, जस्ट नंबरिंग, नंबर्स चेंज है. x plus y is equals to 750. ये नंबर ऑफ टोटल पर्सन, ठीक है, चिल्ड्रन प्लस एडल्ट्स आपकी इक्वेशन बनेगी और ये आपकी अमाउंट की इक्वेशन बनेगी. देन सिंप्लीफाइंग एंड सॉल्विंग यू विल जस्ट गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y एज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स. सो बेसिकली दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ईयर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन. सो यू कैन सी that how simple and easy question they are, but just you have to just quickly read the passage, read the information, collect the important part, and just you have to solve the question. This is main thing that you have to do in these questions. Now let us move toward the second question of today's session. So here you can see the second question. In the 1961-1962 NBA basketball session, Wilt Chamberlain of the Philadelphia Warriors made 30 baskets. Okay, so basically ये आपका एक टीम गिवन है of the basketball championship. Okay, and they have made the 30 baskets, means 30 goals they have done. Some of the baskets were free throws. Okay, that worth 1 point each, जिनका उनको 1 पॉइंट मिला. कुछ बास्केट्स थे जो फ्री थ्रोज थे जिनका उन्होंने 1 पॉइंट गेन किया. एंड सम वर फील्ड गोल्स. ठीक है, कुछ बास्केट्स, कुछ गोल्स जो थे दैट वर फील्ड गोल्स वर्थ 2 पॉइंट्स ईच. और उनका वर्थ क्या था, दैट फॉर 1 फील्ड गोल दे वर गेटिंग 2 पॉइंट. ओके, द नंबर ऑफ फील्ड गोल्स वॉज 10 मोर देन द नंबर ऑफ फ्री थ्रोज. तो यहाँ ये हमारी स्ट्राइकिंग स्टेटमेंट बन जाती है. यही वो स्टेटमेंट है जो हमें इक्वेशन देने वाली है और हमें क्वेश्चन में आगे बढ़ाने वाली है. ठीक है, तो नंबर ऑफ फील्ड गोल्स वाज 10 मोर देन द नंबर ऑफ फ्री थ्रोज. अगर मैंने फ्री थ्रोज को एक्स कंसीडर किया, ओके, अगर फ्री थ्रोज आपकी एक्स हैं, ठीक है, एज अ वेरिएबल एक्स कंसीडर किया, देन फील्ड गोल्स उन्होंने बोला है वाज 10 मोर देन, मतलब कि फील्ड गोल्स तो उन्होंने कितने किए होंगे, x + 10. जितनी भी उन्होंने फ्री थ्रोज की हैं उनसे 10 ज्यादा उनके फील्ड गोल्स हैं. ओके, सो
फर्स्ट क्वेश्चन एंड टोटल गोल्स कितने की है? टोटल गोल्स हमारे ये हैं 30 बास्केट्स, है ना. टोटल गोल्स, टोटल बास्केट्स यू कैन से is 30. Okay. Now what they have asked in the first part, how many field goals did he make? कितने field goals उन्होंने किए हैं, टीम ने किए हैं कितने field goals? So here we can see that free throws are x plus field goals are x plus 10 and the total, these are basically the total goals. So ये किसके equal हो जाएंगे? Equals to 30. Okay. So 2x is equals to 20, x is equals to 10. So x is the free throws, लेकिन हमसे क्या पूछा गया? Field goals. So field goals means x plus 10, that is 20 goals. Okay. So this is the simple answer. अब generally क्या हो, कई बार क्या हो सकता है that if you just ignore and if you just do not carefully read the information given here over in this paragraph, तो आप ये confuse कर सकते हैं. This can happen to a student that free throws x हैं, field goals x plus 10 हो गए, लेकिन मैं कैसे निकालूंगा टोटल गोल्स क्या हैं ये वो. अगर आपने यहाँ पर 30 बास्केट्स इस वर्ड को अगर इग्नोर कर दिया या लेस अटेंशन पे किया. सो बेसिकली इन क्वेश्चंस का मोटिव यही है कि आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें, उससे इंफॉर्मेशन इजीली एंड फास्ट कलेक्ट करें and then solve करें. Okay, this is the first part. Now move toward the second part of this second question. Now the further parts on this question are very simple. Second part को देखिए. How many free throws did he make? तो हमने पहले इक्वेशन बनाई थी और हमने x की वैल्यू 10 निकाली थी. x was free throws, so it is simply part A. Option A is correct. That is 10 goals, है ना. What was the total number of points scored? अब total number of points की बात आती है जब हमें पता है कि 10 are free throws, 20 are field goals. ठीक है, और free throws के लिए 1 point मिल रहा है, तो it means 1 multiply by 10, ये point हमको मिले free throws से, plus 2 multiply by 20, ये points आपको मिले field goals से, और solve किया then you get 50 points. तो total जो टीम थी उसको मिले 50 points. ठीक है. Now, fourth part, if Wilt Chamberlain played 5 games during this season, what was the average number of points per game? तो अगर उन्होंने टोटल 5 गेम्स इस सीजन में खेले हैं तो उनके एवरेज पॉइंट्स क्या हैं? तो एवरेज मीन्स मीन, है ना. तो एवरेज आपको पता है दैट टोटल सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस मीन्स टोटल पॉइंट्स उनके, मुझे एवरेज पॉइंट निकालने हैं पर गेम में. ठीक है, तो टोटल गेम उन्होंने खेले 5, टोटल पॉइंट्स उनको कितने मिले हैं? 50. ठीक है, सीजन के अंदर टोटल पॉइंट्स जो उन्होंने गेन किए हैं दैट आर 50 एंड कितने गेम्स खेलकर वो उन्होंने गेन किए हैं? 5 गेम्स खेलकर. सो 50 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 10 पॉइंट पर गेम. दिस इज देयर एवरेज. ओके, सो दिस इज 10. Answer is 10. Now, if Wilt Chamberlain, the fifth part, if Wilt Chamberlain played 10 games during this season, what was the average number of points per game? अगर उन्होंने 10 games खेले होते तो हमें पता है कि total points वो 50 score कर रहे हैं and total number of games they played is 10. 50 divided by 10, then it will be your 5. Means 5 points per game they would be scoring on an average. Okay, so this is your second question of the case study based questions. I hope it is very clear to you and you are understanding that what main thing I do want to convey you with these questions, these sessions, this video, that these 4 questions, these 16 marks are simply highly scoring for you if you just pay a simple and just attention. Okay, on the content, on the context given and the information. Okay. Now let us move toward the next question, the third question for today's video. This is a good question, simple question. Ria has a field with a flower bed and grassland. Okay, so Ria is having a complete field जिसमें कुछ part flower bed का है and कुछ part आपका grassland है. The grassland is in the shape of rectangle while flower bed is in the shape of a square.
ग्रासलैंड की जो शेप है वो आपकी रेक्टेंगल की शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है. फ्लावर बेड की शेप इज द शेप ऑफ स्क्वायर. द लेंथ ऑफ द ग्रासलैंड इज फाउंड टू बी 3 मीटर मोर. 3 मीटर मोर देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ द फ्लावर बेड. ओके, सो जितना आपका फ्लावर बेड का लेंथ है, जितना आपका फ्लावर बेड का लेंथ है, ग्रासलैंड की जो लेंथ है, ठीक है, ये फ्लावर बेड है, ये ग्रासलैंड है, ये स्क्वायर शेप में है, ये रेक्टेंगल शेप में है ग्रासलैंड. तो जितना आपकी फ्लावर बेड की लेंथ है, ग्रासलैंड की लेंथ उसके ट्वाइस के 3 मोर है. ठीक है, 3 मोर देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ फ्लावर बेड. ओके, यहां से हमारे पास इक्वेशन बनेगी. टोटल एरिया ऑफ द होल लैंड इज 1260 मीटर स्क्वायर. ये पूरा लैंड जो है, जो ग्रासलैंड एंड फ्लावर बेड कंप्लीट है, इसका टोटल एरिया आपका 1260 मीटर स्क्वायर है. ओके, नाउ द फर्स्ट पार्ट दे हैव आस्क्ड इज इफ द लेंथ ऑफ द फ्लावर बेड इज x मीटर. अगर ये फ्लावर बेड है, इसकी लेंथ x मीटर है, x मीटर है तो ये स्क्वायर है, तो ये भी इधर वाला पार्ट भी x हो गया. ओके, तो इवेंचुअली ये वाला पार्ट भी आपका x हो रहा है. ये आपके माइंड में आ जाना चाहिए. ठीक, ओके, अपना क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं. इफ द लेंथ ऑफ द फ्लावर बेड इज x मीटर देन व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द फील्ड. ये पूरे फील्ड की टोटल लेंथ बस हमें बतानी है. तो अगर फ्लावर बेड की लेंथ x है तो हमें पता है द लेंथ ऑफ द ग्रासलैंड इज 3 मोर है देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ फ्लावर बेड मीन्स 2x प्लस 3. ओके, तो 3 मोर देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ फ्लावर बेड मीन्स 2x प्लस 3 आपकी ग्रासलैंड की लेंथ है, यहां तक की लेंथ है. ओके, और ये x आपकी फ्लावर बेड की लेंथ है. तो हमें तो क्या निकालना है, टोटल लेंथ ऑफ द फील्ड. तो टोटल लेंथ ऑफ द फील्ड क्या होगा हमारा, सिंपली हियर दिस इज द सॉल्यूशन. 2x प्लस 3 प्लस x मीन्स 3x प्लस 3. 3x plus 3, that is B is the correct answer. Okay, so 3x plus 3 in the bracket and then writing the unit meter. Okay, this is the correct way to write the answer. ये आपको अपनी solutions में भी include करना चाहिए and समझना चाहिए, सीखना चाहिए. Okay, so this is the solution for the first part, that is B is the answer. 3x plus 3, this is the total length of this field. Okay, flower bed plus grassland. Now let us move toward the second part of this question. What will be the perimeter of the whole field? तो फील्ड का पेरीमीटर हमें निकालना है. तो अगर होल फील्ड की बात करें तो पूरा फील्ड तो आपका रेक्टेंगल शेप का हुआ. ओके, एंड विड्थ मतलब ब्रेथ इस रेक्टेंगल की, जो कंप्लीट रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, इसकी ब्रेथ आपको x पता चल रही है क्लियरली. एंड लेंथ इसकी कंप्लीट आपने अभी निकाली, 3x प्लस 3 है पूरी, यहां से लेकर दिस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट कंप्लीट लेंथ 3x प्लस 3 है. विड्थ x है, तो सिंपली एक रेक्टेंगल है ये, है ना. तो दिस इज रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा आपका, ट्वाइस इंटू एल प्लस बी. और सिंपली सॉल्व किया आपने इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल, इन द फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन आपका आंसर आएगा एंड इट विल बी योर 8x प्लस 6 इज द आंसर. ओके, तो सिंपल क्वेश्चन. Then the next part, third part, what is the value of x if the area of total field is 1260 meter square? Okay, so x की वैल्यू क्या होगी अगर आपका एरिया ऑफ द टोटल फील्ड इज 1260 मीटर स्क्वायर. तो ये टोटल फील्ड किस शेप का हुआ आपका, रेक्टेंगल. इसकी लेंथ क्या थी, 3x प्लस 3, दिस ब्रेथ x. तो एरिया क्या होगा, 3x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x. एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ. ओके, सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया आपने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, फैक्टराइज किया. देन हियर यू कैन गेट आइदर x इज इक्वल्स टू x प्लस 21 इज इक्वल्स टू 0. ये पुट करेंगे आप, है ना. तो ये तो x इज इक्वल्स टू माइनस 21 आ जाएगा, तो नॉट एप्लीकेबल. x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0 मीन्स x इज इक्वल्स टू 20. So x is equals to 20 is the only possible value. Therefore x is equals to 20. Hence हमें value of x निकालनी थी. That will be 20. That is C part is the correct answer. Okay. Now let us move toward the fourth part. What is the area
ऑफ ग्रासलैंड, ग्रासलैंड का एरिया आपको फाइंड करना है. तो x की वैल्यू, x is 20. Okay, and we can see that length of the grassland is rectangular in shape. Length of the grassland is 2x plus 3. Breadth is your x. So basically area क्या हो जाएगा, length into breadth, that is 2x plus 3 multiply by x. Okay, length into breadth. x की वैल्यू 20 पुट की आपने, सिंप्लीफाई किया, you get 860 meter square as the area of the grassland. Simple calculation. Then fifth part, in the fifth part they are asking what is the ratio of area of flower bed to the area of grassland. तो area of flower bed to the area of grassland, सिंपल आपको फ्लावर बेड, ग्रासलैंड का एरिया आपने यही निकाला है, फ्लावर बेड का एरिया आप निकाल भी सकते हैं और आपको ये भी पता है कि टोटल फील्ड का एरिया कितना है, तो सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हैं. सिंपल आंसर है इसका. द आंसर ऑफ दिस पार्ट यू कैन आंसर इन द कमेंट ऑफ द वीडियो. ओके, and you can do this part yourself. I am leaving this for you to attempt. Okay, so these 3 questions that I have discussed today in this video, go through the complete video, watch the complete video, understand the concept, understand the question, and make a practice by yourself, and just stay happy and stay safe at home, and to keep learning and doing your preparations for the exams. Okay, thank you for watching the video. You can share and subscribe the video, and in the case of any doubt, just let me know in the group. And thanks, and stay happy. Thanks to all.